you should do justice to every question, Hmm. give it the limited time that it deserves, and move on. सोशल लाइफ वाज माय मोटिवेशन कि भाई तुम टारगेट अपना खत्म कर लो ताकि यू कैन एंजॉय। मे बी ना मेरे से बहुत ज्यादा लोग मेरे से ज्यादा या हमसे ज्यादा डिजर्विंग हो सकते हैं, और आई बिलीव दैट लाइफ हैज समथिंग मोर फॉर देम। For them, Hmm. yeah. 10 मार्क का क्वेश्चन है, And I आपके think- पास 7 मिनट है, हाँ. 7 मिनट में आपको लिखना है। Yes, yes. मार्क्स तो चेंज नहीं होगा, हाँ. तो मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर लिख के जाना पड़ेगा। We bring in the second book. So both of you have written this book, and we'll come to this book in due course of time. Hello everyone, and welcome to the channel. Today we have with us Srushti Deshmukh and Nagarjun Gowda. Both of them are IAS officers. Hello and welcome. How are you doing? Hello, Thank you so Abhijit. much. Thank you so Thank you, much. We're Abhijit. doing good. Yes. Thank you. How Right. are you? I am doing great, and I think the first I'd like to talk about this book, which is Srushti wrote this book, and this was sort of a running joke that we were just having. Maybe inside over here there is Dr. Nagarjun Gowda ka naam, but outside there is no name over here. So, what is the sort of, is there a marital reason behind it? As we were talking about this कि पहले तो we thought कि भाई गए तो बुक तो दोनों साथ में ही लिखे हैं, तो we didn't wanted to मतलब वो बहुत ज्यादा वो हाईलाइट ऐसे होता है हो जाए कि कपल ने लिखा है वो ये सब। आफ्टर we got married and engaged and married for that matter कि it became a big news, तो इसलिए थोड़ा सा we wanted to avoid that couple वाला angle, but everywhere both of the names are there. Yeah. तो beginning books वैसे beginning prints में सिर्फ ऐसे कुछ Which ऐसे is where we bring in the second book. So both of you have written this book, and we'll come to this book in due course of time. So before we get there, I'd love to hear your UPSC journeys. Srushti, let's begin with you. How did you prepare? What was like the experience like? And like, I think both of you had sociology option. No, I had medical science. Oh, you had medical science. Great. So just a couple of lines, brief, what happened? What was your best part, worst part? So I started, so somewhere this IAS and civil service was like a childhood dream. So when it came to my college and finally I wanted to decide on what job I was going to take, I thought that, I want to give UPSC a shot. And I started preparing along with my college somewhere in my second, third year. And I took some classes. I did my I went through all kinds of online material that are available, different books, this, that. I go to Delhi, so I thought whatever is available in Bhopal, in my city, I should be able to harness completely. And then I made my own notes. I relied on huge this thing on test series, wrote so many answers, and that's how I think plenty of note making, plenty of answer writing, and that's how I think I landed up getting selected in my first attempt. Do you think there was again, this is something that I talk about in general quite a bit, which is there's always a factor of chance. Yes, absolutely. I absolutely believe that there is this 1-2% luck that plays a role. That is where, I use the word thankful, and I was about to say I'm thankful to my parents, my teachers, my mentors, all the blessings that I have. And I think they have also played a huge role in me being where I am at the time that I got selected. So definitely that factor is there with everybody, for everyone. There are people who would have put in greater efforts, but life and destiny have something else for them. So that definitely is a factor. Right. So, Nagarjun, how was your journey? How many attempts did you take? Mine was the second attempt, so I cleared in second attempt. So my journey is a bit of a different from general aspirants because I prepared while I was working. So and I didn't take any formal coaching for that matter. So I prepared on my own. My era was complete. Was that a conscious decision or that something that just happened? It was a conscious decision. As I was telling, the government gives scholarship in Karnataka for students who want to prepare. Yeah. They give an exam where it is actually very competitive exam where so many thousands of 20-30,000 students will write. So if you get selected in that under whichever category you belong to, so you will get free scholarship across like in institutes like Vajiram and Rao's everywhere. So they will give you the whole fees and
again for 10, 12,000 monthly Hmm. everything. I got Expenses. selected in that as well. But I consciously decided not to take up coaching Hmm. because somewhere knowing myself, which I would suggest for every aspirant that you should know your demands. Knowing Definitely. myself, I believe in self-study because my बचपन से school से I have studied on my own. Hmm. Definitely coaching tuitions I have taken in my 12th and everywhere. But I have relied on my self preparation and it has helped me throughout my uh, student life. So I consciously made that decision and it has worked out for me. And as I told it was the second attempt. I was working as a doctor, as a Hmm. junior resident in the college where I studied as well, Mandya Institute of Medical Sciences. So along with that, I started preparation. So first attempt, I attended the interview. I missed the list by few marks. So second attempt, I got into IAS. That's awesome, man. And like, how did you manage your time while working a full-time job and then preparing? This is whoever asks, talks about working while preparing. This is what I suggest them. यहाँ पे when you're preparing for UPSC, you should choose your job wisely. You Hmm. should not work to earn, but you should work to sustain. So that is what I believed in. I took up a job, junior resident, where you'll have to do teaching. Hmm. So I took up this, and sometimes you will have to do the duties and emergency duties and all. But generally, it is teaching. So what I used to teach was part of my UPSC preparation as well. तो मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस था सो जो भी Yeah. मैं पढ़ाता था दैट वाज पार्ट ऑफ माय UPSC preparation. So Optional I preparation was not also. wasting my time. Whatever work I was doing, I was Hmm. actually utilizing it for my exams, Hmm. and it was not wastage of time. And it is a 10 to 9 to 4 job. Okay. So every day in the morning before 9 o'clock, you read your newspaper, go to college. So if you have any work, you do it, or else you sit in your room, you read. In the afternoon, I used to have classes, 2 hours of classes daily. So Hmm. that I used to take. If I don't have class, sit there and read something. And after 4, I used to go to library every single day. So sit in the library till 9:30. So come back Hmm. home. So 10 to 10:30 was my leisure time. 10:30 to 12:30 again you How old were you at this time? 24, And 20. how did you sort of maintain? Srushti, how old were you when you cleared the exam? I was 22 something. So, So When I like, cleared, I was 26 and 26, 37. great. So, like, Nagarjun, I'd like to know more from you in the sense of, Kibi, how do you maintain motivation when you're working a job, right? You are putting in extra effort beyond that. Like, you have no social life to speak of, right? And both of you are that in we sick must over No, there. no, that I we must disagree with highlight that. I what's had, their role. see, I believe in you should always appreciate your work, and if you have completed a goal or something short term Mhm. goals, and I used to uh, खुद को मैं रिवार्ड भी करता था उस पे सो दैट वाज माय How? सोशल लाइफ तो लाइक आई हैड माय टारगेट्स की आई if I if I'm preparing for prelims next year Hmm. तो obviously I consulted few seniors who had told कि मतलब आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा सोर्सेस Hmm. आई हैड फिक्स सोर्सेस ठीक है आई विल रीड दिस तो Hmm. न्यूज़पेपर एंड उसके साथ मंथली करंट अफेयर्स Hmm. उसके साथ प्रीलिम्स के पहले क्या पढ़ना है तो मेरा फिक्स सोर्सेस था उसके अलावा एक्स्ट्रा मैं आई यूज्ड टू नॉट गो इनटू दैट Hmm. एंड मैं उसको डिवाइड करके रखा था कि इनटू नंबर ऑफ रिवीजन्स each revision, how much time you will take or how much Hmm. time you should take, that into monthly targets, weekly targets, daily targets, and hourly targets. तो आई ऑलवेज यूज टू मतलब मेरा आई न्यू माई स्पीड कि भाई Hmm. ठीक है जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ तो मैं हर घंटे में 5 से 6 पेज में पढ़ सकता था ठीक है. तो हर बुक में दिस इज व्हाट आई टू डू फर्स्ट कि इस बुक में कितने घंटों में कितना पेज पढ़ सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग आई टू सेट द टारगेट को इस बुक को मुझे इतने दिन में Hmm. करना है तो आई टू पुश हार्डर सो दैट आई फिनिश थिंग्स बाय फ्राइडे एंड आई गेट Hmm. माय वीकेंड तो मैं वीकेंड टेस्ट लिखने में बैंगलोर जाता था ओनली ऑन संडेज आई टू राइट Hmm. टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द सोल गाइड फॉर मी तो बैंगलोर जाके वीकेंड्स आई टू राइट टेस्ट एंड आई टू हैव माय वीकेंड वाला सोशल लाइफ Hmm. and I used to not study. And again, come back, sit down, and finish off your targets. Actually, the social life was my motivation. कि भाई तुम target अपना खत्म कर लो ताकि you can enjoy. So That's a great thing. That's a great way to motivate yourself.
यस यस, सो और शॉर्ट टर्म मोटिवेशन के लिए जरूरी भी है, बिकॉज हम्म शॉर्ट टर्म मोटिवेशन रख के ही आप लॉन्ग टर्म, आप यू कैन नॉट थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, यू विल हैव टू थिंक एवरी सिंगल हार, एवरी Short, सिंगल डे। correct. That is true. हाँ, तो आप 6 साढ़े 6 बजे, मेरा टी ब्रेक रहता था 6:30 बजे से 7, Hmm. चाहे दोस्त लोग आए कि नहीं आए, मैं अकेले जाके चाय पी के आता था। तो 6:30 के अंदर मुझे पढ़ के जाना था कि इतना हम्म पढ़ना है, इतना पढ़ना है। तो दैट्स हाउ आई यूज टू कीप वेरी स्मॉल शॉर्ट टर्म गोल्स, बहुत लंबा कुछ ऐसे I think his is one of the preparation where he has a very active social life from the हाँ start till today. It would go on. So, his friends become a very important part of his life. हम्म And so, whatever he manages, whether it is job or now I'm job, that time it is preparation. So, I think he would do justice to his friends, his social life, and then he would still manage to achieve his goal. So, I think it is different for each of us. हम्म I think we should be able to devise कि हम क्या करना चाहते हैं. जैसे How for was me, it for you? हाँ it was very different. I tried to cut off myself from all the social life and हम्म everything, and I just, went into this mode, my study table and my college. And so I was going to college. That was again 9 to 5. I used to come back, attend the class. Then, if when the classes got over 5 6 months, then I started preparing on my own. So it was like कि नहीं मुझे first attempt में ही करना है and things like that which come up with the first attempt जोश. So, हम्म so I did not, I could not imagine that I was also handling a social life and I was also doing preparation. So that's very personal to me. So I हम्म feel that हम सब लोग बहुत अलग होते हैं और हमें अपना अपना preparation strategy, plan, framework खुद सोच के बनाना चाहिए. बिकॉज And Definitely. अल्टीमेटली what worked for me worked for me. What worked for him या worked for him. एवरीबडी आर डिफरेंट I कि think आई Arjun started with that idea, right? Ki you have to know yourself. you have to know Yes, yourself yes. and you have to trust yourself. You Hmm. cannot, I cannot be Sushti. Sushti Hmm. is very hard working, मतलब extreme hard working. तो You say that as if you are not. नहीं, आई एम हार्ड वर्किंग बट इतना मतलब आई हैव यूपीएससी में तो पर्टिकुलरली इसके आई हैव सीन हर नोट्स आफ्टर आई Hmm. सॉ हर स्टडी रूम अंडर नोट्स, आई एम लाइक भाई ठीक है, आई एम यू डिजर्व टू बी देयर, मैं डिजर्व टू बी, मतलब बहुत ही शी इज हार्ड वर्किंग, आई एम आल्सो Hmm. हार्ड वर्किंग, बट आई मेरा अलग रहता है कि आई गिव प्रेफरेंस टू एवरीथिंग, कि फॉर Hmm. मी जॉब, लाइफ, Hmm. family, friends, everything becomes important. So for her also, तो every मतलब everybody are different. जैसे आप भी, आप आपका भी अलग, एक अलग ये रहता है कि आपका अलग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगा, रहा. बट यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ। Definitely. नेवर डाउटेड माई सेल्फ कि बहुत सारे लोग सोचते थे कि ये तो यार हर फ्राइडे या कोई नया मूवी रिलीज होता है, आई एम ए बिग मूवी बफ, तो नए मूवी रिलीज होते तो ये हर फ्राइडे चले जाता है या सैटरडे Hmm. चले जाता है। तो फिर भाई आई लाइक टू वॉच मूवीज एंड आई एम ट्रस्टिंग माई सेल्फ कि भाई मैं कर सकता हूँ इसको। तो दैट आई वुड सजेस्ट कि आप यू कैन नॉट इमिटेट समबडी एल्स, सम अदर टॉपर, कि आप यू शुड बी योर ओन, दैट्स व्हाट Yes, विल हेल्प correct. यू। That's absolutely true, which is why sometimes it's very important that we have general guidelines, but we need to mold those guidelines to our own set of, practices, because otherwise फिर वो वही है कि भाई किसी ने बोल दिया, like Srushti said, कि भाई she cut herself off. मतलब हम्म। I think Nagarjun or me would have just like gone mad at that कि भाई ये तो नहीं हो रहा Yeah, है. yeah. नहीं, मैं वो Hmm. मेंस के सुबह भी आई रिमेम्बर, मतलब आई स्क्रॉल्ड माय रेगुलर व्हाट्सएप मैसेजेस, I cannot सोशल even मीडिया एंड ऑल, imagine. I सुबह cannot साढ़े imagine that I would have distracted myself with some WhatsApp message. Like I'm a person, I actually listened to some motivational song and went inside my mains hall. मेरा Like, मेंस हॉल के पास I was something माय to do फ्रेंड that का time. रूम था। Hmm. आफ्टर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के बीच में आई यूज्ड टू गो स्लीप फॉर 1 आवर, Hmm. रिवीजन वहां पे, बिकॉज मुझे रेस्ट चाहिए था कि भाई Yeah. रेस्ट चाहिए बिटवीन पेपर्स। पर Hmm. लोग वहां पे बैठ के पढ़ते भी, पढ़ने वाले भी क्लियर होते हैं, हम लोग, हम जैसे लोग भी क्लियर क्लियर होते हैं। तो इट इज योर ओन स्ट्रेटेजी, यू Yes. शुड बी I योर think ओन। one of the best examples of this was I was giving my sixth attempt. I've given all six attempts. I would not advise that to anyone. But हाँ मतलब जोश जोश में चल रही थी चीजें. तो one of the people that I met over there in a mains, he ended up clearing in his sixth attempt. He's an IPS officer now. तो he said to me कि भाई यार आपको मेंस में मैंने देखा, कह रहे कि भाई पेपर के बीच में आप चिल थे, कि भाई आप इधर उधर घूम रहे हो, आप मतलब गप्पे मार रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, ये कर रहे हो। कह रहे कि मैंने उसको देख के बोला, मतलब इतना चिल होना है मेरे को।
कह रहा और मैं जब चिल हुआ ना वो, तो कह रहा वो मेरे अंदर से मेरे को खुशी मिली, और उस साल वो उसका पेपर निकल गया। तो मतलब दैट इज अगेन हिज स्टोरी, ही फिगर्ड आउट Yes, बिकॉज़ ही yes. वाज That ट्राइंग is true. समथिंग एल्स। That is True, true. true, true. We have a very close friend of ours who had been preparing along with me, had been given exam with me. मेरे एक साल junior है. हम्म IAS now. तो उसका फाइनल अटेम्प्ट में she had just given up. She was like, दी मुझे करना है कि नहीं मुझे पता नहीं. Then she came over to my place where I was posted. She saw my work. Like She sat with she me had in not my cleared, I court. think, 4 or 5 हाँ year बहुत prelims बार उसने in नहीं a stretch. prelims she couldn't clear. She came to my workplace. She was like मैं देखती हूँ कि काम कैसे होता है. She just came around. Then she went to Delhi to pursue some course. हम्म So she's doing some master's thing. And with that she gave the attempt and she got selected and she is in top 50 and she's Top in 30. UP. So मतलब that's how you know it is very different. जैसे आप बिगिनिंग में सृष्टि से यू आस्क्ड कि आई वुड फील दैट दिस एग्जाम टू एन एक्सटेंट हार्ड वर्क, मतलब आप 1,000 सीट होते हैं कि मतलब जो भी वैकेंसी रहती है, बट एटलीस्ट 10,000 या 15,000 डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं who deserving, equally hardworking, they have given everything Knowledgeable. for this exam and Equally वहां पे knowledgeable. अगेन उस दिन का जो है बहुत सारे फर्क बहुत पड़ता मैटर है। होती है, Yeah. हाँ बहुत फर्क पड़ता है दैट डे। so we were lucky, so and so many people were not lucky, but it doesn't mean that they were not Absolutely. Deserving. talented, और मे बी ना मेरे से बहुत ज्यादा लोग मेरे से ज्यादा हमसे या ज्यादा. हमसे ज्यादा डिजर्विंग हो सकते हैं। तो और आई बिलीव दैट लाइफ हैज समथिंग मोर फॉर देम। For them, yeah. तो हम मतलब कुछ और होगा कि they will do excel because they have worked hard, they have shown that character, so that character is much more important than what you're doing, I feel। तो In the लक long run, बहुत। yes. Well, definitely, completely agree with you. In the long run, character is much more important, but that's the problem, right? When Yes, you're down in the dumps, मतलब कैरेक्टर इज लाइक वेरी स्मॉल सॉलेस फॉर कि भैया हाँ ठीक है कैरेक्टर है, क्या करूँ मैं कैरेक्टर का। I know that is true, but in the long term I think लॉन्ग that टर्म में is वही what मैटर pays होता है you कि out. फॉर टू बी अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल, whoever हम्म has been successful, if we see हम्म about the history। Definitely. Well, like I think I was talking to Arjun before. He mentioned Gagan and he mentioned Madhav. So a couple of people who also are embroiled in a case which is pending in the Supreme Court. So we have a group of 50-55 people who OBC का case चल रहा है. हाँ. So you've seen a lot of these people react very differently, right? And that naturally is भाई मतलब वो वेरिएशन रहता है। कुछ लोग अच्छा रिएक्ट करते हैं, they try hard, they do something else. Like for example, Madhav and Gagan are doing other things. There are a lot of people who are doing other things. There are some people who are still, struggling with that idea कि भाई यार this bad thing happened to me. So somewhere or the other that you have to deal with that hardship. And like if you get lucky, great, make the बस most of it. yes, yes, Yes. yes, this is a dream which comes true for few, but Hmm. I think life has something more for somebody, few of others। बहुत Hmm. सारे लोग तोड़ के भी जाते हैं कि so many of the people because they don't find it suitable Suitable, there for yes. their character, यहाँ पे बहुत सारे लोग Hmm. तोड़ के भी जाते हैं। तो this should not be the end in itself, Hmm. I think it should be the means to an end। यूपीएससी बिकॉज यूपीएससी मतलब जो भी यूपीएससी के लिए honestly प्रिपेयर होते हैं, दे लर्न अ लॉट Hmm. टू बी हैंडलिंग देमसेल्फ इन द लाइफ, कि आप Yeah. सब कुछ चीज आप जान लेते हैं कि मतलब आपको जिंदगी में यू दैट मेक्स यू बेटर एंड नॉलेजेबल पर्सन। दिस इज डेफिनेटली ट्रू। मी बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी Hmm. एंड आफ्टर आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, आई एम टोटली डिफरेंट कि That's very true. पर्टिकुलरली हाँ, तो आप सब समझ लेते हो। Right. So I think now let's move on to a bit more practical exam-oriented ideas. Ki obviously, Srushti and you have written a great book on answer writing. So let's deep dive a little bit into that. Ki what exactly was it? Matlab, for example, Srushti was one of the highest scorers in her year. She secured, I think, 470 marks across all GS papers. Yes. Right. So, like, if you have to distill some guidelines, कि भाई ये चार पांच चीजें हैं, they work. What would you say those 4-5 things would? And Arjun, I would like you to sort of corroborate or add or subtract from them as you see Yes, fit. yes, yes। Right. So the answer writing manual का concept इसी से आया कि we all read so many sources, we revise them multiple times, but I believe that what makes a difference in the final scoring of the list is what exactly are you writing on that day in those 3 hours
in that one GS paper. And optional, तो ठीक है, optional is very important. Optional will add on, will push your score. But general studies is something which everybody is reading. And if you are writing their general answers, and if you are writing answers in which आप एक या दो तीन चीजें एक्स्ट्रा ऐसी डाल रहे हैं जिसमें आप हर क्वेश्चन में एक या दो मार्क एक्स्ट्रा खींच रहे हैं, so if you can do that, your answer copy will be shining out than the other 10-12 answer copies which the invigilator is going to check that day. And that should be your sole aim. So whatever I had practiced, because I had practiced writing so many answers and I had taken guidance from different things available, I thought, why not If condense you had everything? to put a number to like how many tests that you gave or how many answers that you wrote, 100, 500, 700, 1,000? Yes, मतलब इतना जरूर है, because I took a test series 1 year before से from an institute where I had to give 15 days में there used to be full length papers. उसके एक ईयर पहले से I was writing daily से 2-3 answers. Online बहुत सारे platforms हैं जिसपे they give free of cost questions and we have to just answer and put your answer Yeah. sheet there. So that was also there. So definitely somewhere around 700 to 1,000, that kind of range I had tried to write. And Approximately for those listening, that will be about, I think 700 divided by 20, right? 35 full tests almost. almost, yes. So उससे I learned a lot, and then and when my scores came up and I correlated, so I realized कि definitely उसके पीछे केवल knowledge नहीं है, उसके पीछे जो answer writing में practice गई है, उसके वजह से this yield has come out. And so I thought that why not condense everything that I have learned for answer writing into this book, and where we handled every GS 1, 2, 3, 4 papers. राइट फ्रॉम प्रेपरेशन आपको कौन से सोर्सेस से उठानी है, उसके बाद जब आप आंसर लिखते हैं तो आप आंसर को कैसे अप्रोच करते हैं. जनरली आंसर राइटिंग पे केवल इतनी ही बात होती है कि आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में उसको डिवाइड करिए. फिर मैंने एक और चीज विच आई रोट की सॉल्ट ऑफ आंसर राइटिंग. आई कॉल इट सॉल्ट बिकॉज आई फील कि देर आर थिंग्स विच यू कैन यूज इन एन आंसर. ज्यादा यूज कर ली तो मजा नहीं आएगा, नहीं यूज किया तो भी आंसर में ब्लैंडनेस रहेगी. So these are, data from international reports, data from national things, Supreme Court judgments, other such things, diagrams, maps. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, such elements which you can use in your answer, which actually authenticate your argument. Because हर कोई लिख रहा है एक argument, बस आपका वो argument authenticate कैसे करोगे, तो you'll have to support it with some kind of, कि किसी committee ने कहा है या it is coming from some authentic source. So इस टाइप का you have to build an answer. स्ट्रक्चर पे बहुत इंपॉर्टेंट है. हर जो आप क्वेश्चन अगर डिस्कस पूछा है, इलेबोरेट पूछा है, एक्सप्लेन पूछा है या कॉन्ट्रास्ट पूछा है, तो हर एक कीवर्ड में एक माइनर डिफरेंस होगा व्हेन यू आंसर. तो उस माइनर डिफरेंस को अगर आप कैप्चर करते हैं तो Could you elaborate a little more on the like sort of differences between these keywords? जैसे से फॉर एग्जाम्पल डिस्कस, तो डिस्कस इज अ वेरी जनरल टर्म. बहुत ज्यादा डिस्कस पूछा जाता है इन जनरल क्वेश्चंस. जनरली व्हेन यू आर डिस्कसिंग समथिंग यू वुड talk about its positives, you would talk about its negative, you would give a general perspective of it, and then you will conclude by telling some midpoint or something. अगर आप explain की बात कर रहे हैं तो एक्सप्लेन विल बी जनरली, एक्सप्लेन जनरली तब यूज होता है जब कोई साइंटिफिक फिनोमेना या कोई कॉन्सेप्ट की बात हो रही हो क्वेश्चन में. तो वहां पर आप सबसे पहले आप उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, आप उसके एग्जाम्पल्स देते हैं, आप उसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो द फ्लो ऑफ द आंसर इज अ बिट डिफरेंट. एंड जब आप से और कोई की टर्म क्रिटिकली एग्जामिन जो वर्ड है, तो क्रिटिकली बहुत बार यूपीएससी क्रिटिकली डाल देता है. जनरली वी आर गेटिंग कंफ्यूज कि क्रिटिकल मतलब क्या हमें उसके नेगेटिव्स ही हाईलाइट करने हैं. नहीं, क्रिटिकली मींस हर उसके स्टेक होल्डर से, हर उसके पर्सपेक्टिव से मल्टी डायमेंशनल तरीके से आपको उसको एनालाइज करना है. तब आई थिंक वो इसमें आई वुड ऐड कि लाइक आप क्रिटिक्स सोचते हैं तो पहले आपको याद आएगा मूवी के क्रिटिक्स के बारे में. जब आप कोई भी मूवी का क्रिटिक जब पढ़ते हो, वो हाइलाइट्स, पॉजिटिव्स भी हाईलाइट करते हैं, नेगेटिव्स भी हाईलाइट करते हैं. फाइनल में दे विल गिव देयर ओवरऑल कंक्लूजन एंड सम. ऐसे ही है ये भी कि आपको सब हाईलाइट करना है उसको. आप अगर पॉजिटिव, आप सिनेमेटोग्राफी में बारे में आप पॉजिटिवली बात करें तो आपको उसमें क्या अच्छा लगा,
हम्म या तो आपको एक्टिंग के बारे में नेगेटिवली बात करो एक फिल्म के बारे में, क्यों अच्छा नहीं लगा, सो हम्म दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिटिकली एग्जामिनिंग। सो डिस्कस एनालाइज क्रिटिकली, सब एवरीथिंग इज माइनर बहुत माइनर डिफरेंस डिफरेंसेस रहती है। है बट दे मेक अ डिफरेंस टू द फ्लो ऑफ द आंसर हम्म You should answer हाउ that. यू शुड आंसर। देन एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हर क्वेश्चन 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है हम्म और हर एक क्वेश्चन का एक थीम होता है और एक फोकस पॉइंट होता है। तो हम्म थीम मतलब माइट बी द बैकग्राउंड थीम, जैसे दे आर टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन इन इंडिया, दैट हम्म माइट बी द थीम। बट देन दे हैव मेंशन्ड कि दिल्ली में एक्स मंथ में जो स्पाइक हुआ था उसको कैसे डील किया जाए। तो Would द you बैकग्राउंड, would you mind if we take up some questions from mains this year so that we can sort of like have a very clear example of कि अच्छा जी इस क्वेश्चन में ये थीम है और ये मेन फोकल पॉइंट है, ठीक है, वी Yes, कैन डू दैट या। वो right? मतलब हाँ, that will help. I can open up the GS2 का paper on screen. I can share the screen right now. So the question is, public charitable trusts have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment. Okay. तो इसमें as I told, if I am taking this means, अभी मैं हम्म एग्जाम में बैठा हूँ, पहली बार एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, हम्म तो मुझे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इज और फोकस पॉइंट, हम्म और इसका बैकग्राउंड है इंडियाज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सो हम्म दैट इज बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन। हम्म एंड यहाँ पे आपको मतलब उसके साथ साथ आपको पब्लिक इश्यूज को एड्रेस करते हुए हाउ इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाने में पब्लिक ट्रस्ट का क्या रोल रहेगा, हम्म तो रोल रहेगा करके यहाँ पे बता रहे हैं, दैट इज अ स्टेटमेंट विच दे आर मेकिंग, यू हैव टू कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। Can I also talk about the opposite side of it? कि भाई maybe there might be a case where public charitable trusts don't have a role in this case. Yes, You because should because you should definitely, because the keyword is comment. comment. Comment is a very open-ended thing. जब आप किसी के बारे में कमेंट करते हैं तो आप ये नहीं बताते हैं कि वो अच्छा है या वो हम्म सही है, आप उससे डिसएग्री भी करते हैं। एंड हम्म दैट इज वेयर द कीवर्ड कमेंट इज वेरी ओपन एंडेड हम्म एंड दिस लीव्स यू रूम टू also disagree with what UPSC has given to you as a statement. And it, I think UPSC also expects you to disagree because it also wants you to have a other perspective, other side of the story as well, other side of the coin जिसे हम कहते हैं। हम्म तो इसमें हो सकता है कि 3/4 ऑफ द आंसर आप डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में कैसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को हेल्प कर रहा है उसके बारे में बताएं। 1/4 ऑफ द आंसर यू कैन ऑल्सो डिवोट टू how it might be, might not be doing it, or how it might not be aiding it also. But जैसा और मैं बताया, अगर आप हाउ इट माइट नॉट बी करके ही आपका मेन फोकस है कि आपको लग रहा है कि नहीं ये हाँ नहीं हो पाएगा, हाँ तो आपको मतलब आप इसमें इम्प्रूव किया तो कैसे हो पाएगा, वो भी आप थोड़ा सा ब्रीफली लिखे, बट उसके बारे में भी आपको कमेंट करना पड़ेगा यार। तो यू आर एनालाइजिंग a statement, you have to comment upon the statement. And जैसा earlier we talked about background and theme हम्म and focus point. So you generally start with the background. When you introduce an answer, you start with the background, then you move towards the focus point, and then you again end it. So that is the flow of how the answer moves. So that keeps it a bit organized. नहीं, इसमें बहुत सारे लोग आप जैसे बता रहे थे कि इसमें मैं एक और जनरल पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग को उतना ही जानते हैं जो टॉपर्स फर्स्ट रैंकर जितना जानते हैं, उतना ही लोग जो मेंस नहीं क्लियर है उतना जानते हैं। बट वहां पे क्या लिखते हो इस क्वेश्चन के लिए, कैसे वो क्वेश्चन आप पढ़ते हो, आप उस क्वेश्चन को कैसे समझते हो, एंड उसके बाद वहां पे कैसे लिखते हो। तो बहुत सारे लोग समझ लेते हैं बट लिखते लिखते दे गेट मतलब फ्लो में कुछ और लिख लेते हैं। That's very true, and which brings me to the next point that I wanted to ask. This is a question to Arjun. That did you write your answers in paragraphs or points? मैं इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन आई वुड से कि, Okay. बट मेरा जनरली पॉइंट्स था Hmm. बिकॉज I- हाँ Because my question comes from the idea कि nowadays there is a lot of focus on कि भाई नहीं points में लिखो, points में लिखो, points में लिखो, 10 marker है तो 10 points लिखो, 15 marker है तो 15 point लिखो. And this is where sort of I would also like Srushti's perspective because she was one of the few people that did not write in points. So like how do you, क्योंकि अब जैसे मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, अब अगर मैंने 10 मार्कर में 10 पॉइंट लिखे हैं तो नेचुरली इट सीम्स लाइक I've written a lot of information. तो हाउ डू यू स्टिल while writing in paragraphs make it so कि भी मतलब it appears that I have put in a lot of information. I think I wouldn't say कि मैंने points use नहीं किए, हम्म but I think वही है कि it very much depends on the question. हम्म You know, if it was an elaborate,
सो इलेबोरेट क्वेश्चन को मैं पर्सनली जाऊंगी तो मैं पैराग्राफ से जाऊंगी. That I would want, if I'm elaborating something, I will use 2, 3, 4, 5 sentences and I will use different paragraphs. हर पैराग्राफ में मैं कोई एक ऐसा उस पर्टिकुलर रिलेटेड एक आर्ग्यूमेंट यूज करती थी. उस आर्ग्यूमेंट को आई यूज टू अंडरलाइन देन एंड देयर विद अ पेन. नो टेकिंग पेंसिल, नथिंग, यू डोंट हैव टाइम. Whatever you are writing, just underline कि ये इस पैराग्राफ में ये मेरा पॉइंट है. तो if you want to give me marks, you see this point and you know this is the one that I want to convey in this para. नेक्स्ट अगेन यू आर गोइंग टू, फिर कई लोग साइन पोस्टिंग करते हैं, जैसे विल गिव अ स्मॉल हेडिंग ऑफ इट, अंडरलाइन इट, और फिर उसके बारे में पैराग्राफ लिख देते हैं, जो जनरली लोग ऐसे में भी करते हैं, आंसर्स में भी कर सकते हैं. तो पैराग्राफ इफ यू आर यूजिंग, साइन पोस्टिंग कर लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, तो आपका पॉइंट्स इजीली कन्वे हो जाएगा. देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जैसे एनलिस्ट, कॉन्ट्रास्ट, लिस्ट आउट. ऑब्वियसली इसमें आपको पॉइंट्स में ही जाना है. तो लिस्ट बोल दिया है तो लिस्ट बनानी है तो 1, 2, 3, 4, 5 और ABCD और स्मॉल डॉट्स डॉट्स डॉट्स. Like difference between Indian and American constitution, something like हाँ, so definitely you have to have points. Examine में भी मुझे लगता है एक और कीवर्ड है, examine is somewhere, हमें पॉइंट से जा सकते हैं. examine मतलब पॉजिटिव भी देना है, नेगेटिव, क्लियर कट है, पॉजिटिव देना है फिर नेगेटिव देना है. तो पॉजिटिव के 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख दिए, नेगेटिव के 5 पॉइंट लिख दिए. यू ऑल्सो नो दैट तुम्हारे सोचने में भी तुम्हारे लिए आसान है, इसका कॉन्ट्रास्ट ही है, इसका कॉन्ट्रास्ट ही है, एंड देन यू कंक्लूड. तो आई थिंक इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन द आंसर. इफ यू आर गोइंग बाय पैराग्राफ, प्लीज हाईलाइट इट or signpost it. It becomes easier for you to think and the examiner to. नहीं, एक और आप एक evaluator की तरह से सोचिए आप. They are also humans. They are also human being यार. मतलब दिन में 8-10 कितना भी क्वेश्चन पेपर मतलब आंसर पेपर वो एग्जामिन कर रहे हैं, तो एक ही तरह के मतलब पॉइंट्स देख के या पैराग्राफ देख के they will also get bored. तो आप when you stick to the demand of the question, जैसे मैं सृष्टि बता रही थी कि एक एक क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से वो लिखती है, तब it makes it a bit more different, each and every answer much more interesting. तो and ultimately उनको वहाँ पे 5 मार्क करने की जगह में 5.5 या 6, वो जो आधा एक जो डिफरेंस होती है ना, if you can bring that in each and every question, that makes the difference. That is the only difference. यहाँ पे आपको परसेप्शन बिल्ड करने में डेफिनेटली आप मिक्स एंड मैच किया डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, दैट विल हेल्प more, I would say. Definitely. I think this is something that I tell all of my students कि if you make my life easier, me being the examiner, तो मतलब तुमको नंबर मिलेंगे. अभी मेरे को ढूंढना पड़ रहा है तुम्हारे आंसर में कि पॉइंट किधर है, तो भैया मतलब मैं काटूंगा ना, मतलब by default I am not inclined to give you marks. You have to snatch marks away from me. Yes, that is very true. वो snatch करने की marks है हर क्वेश्चन में बस. Right. So last question on mains before we move on to other things. कि अब ये जो डिफरेंस वाली बात आ रही है कि आधा नंबर 1 नंबर का डिफरेंस बनाना है, ये कैसे बनाया जाए? मतलब यू टॉक्ड अबाउट कि भी यू शुड गिव सम कमिटी रिकमेंडेशन, सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ये वो, तो बोले ये इसका क्या किया जाए, ये कहाँ से आएंगे? मैं आई वुड टेक दिस क्वेश्चन. व्हेन वी डिसाइडेड अपॉन राइटिंग अ बुक ऑन आंसर राइटिंग मैनुअल, तो उसका बैकग्राउंड था कि भाई सभी आंसर राइटिंग के बारे में ही पूछते सर आंसर कैसे लिखे. या तो whoever used to take guidance from us, जिनका मेंस के लिए लिखते थे, उनका हम आंसर पेपर हम पढ़ते थे, they used to fall short in this. तो तब when we were discussing, we used to be on the same line. हमारा लाइन ऑफ थॉट सेम था कि भाई हाँ, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार ही आंसर करना पड़ेगा. We have to divide it into different parts, give equal weightage to all parts. हमारा सोच सेम है when it comes to answer writing, but हमारा मार्क्स डिफरेंट है. है ना कि मतलब जीएस में एटलीस्ट वी हैव डिफरेंस ऑफ 60-70 मार्क्स इन जीएस 1 2 3 4 ओनली. दैट इज शी इज हाईएस्ट, मेरा बहुत कम है. दिस इज वेयर you'll 60-70 पे you'll still have 400 which is a pretty decent score. So it is decent score, that's how I have got a rank. But if you have to improve that 67, that is 70-80 questions in 4 GS papers. It is 1 mark per question. आप क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चन अटेंड किया सारे पेपर में, इन्होंने भी किए हैं, तो वो 1 मार्क जो है वहां पे आई वुड फील कि वट एवर द हार्ड वर्क शी हैड डन, वट एवर द, बिकॉज हमारा सोच सेम है, हमारा अप्रोच सेम है, दैट्स व्हाई आई कैन कंपेयर बोथ ऑफ अस. वट एवर द हार्ड वर्क शी हैज पुट इन, so the amount of knowledge which she has gathered and the practice which she has done in bringing out that answer on the paper, that has made the difference of 1 mark in each question, or maybe Absolutely. 10 to 15 marks per paper. At least 15 marks per question. 15 marks per paper. So
आपको ना मतलब तो भाई मतलब फॉर दैट सोर्स तो सी वी न्यूज़पेपर रीडिंग इज समथिंग व्हिच I think a lot of my data, a lot of the, so I had made a data book, it's a very small copy where I used to write down the things which I am reading. Editorial हम हम्म पढ़ एडिटोरियल के नोट्स हम नहीं बना रहे हैं ऑब्वियसली, हम्म बट एडिटोरियल में कुछ ऐसे सेंटेंसेस और कुछ ऐसी चीजें हमें मिल जाती हैं विच आर वेरी स्ट्राइकिंग. So हम्म I always tell कि editorial is either like an answer on or an essay. So the हम्म author is trying to convince you of their views, they are trying to give balanced perspective या फिर they are completely one sided sometimes. तो हम्म एडिटोरियल जब आप पढ़ते हैं तो दे ट्राई टू ऑथेंटिकेट देयर आर्ग्यूमेंट्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो आपको बहुत सारी बार आप जैसे पॉवर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप एमडीजी के बारे में रेफरेंस आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में मिलेगा, मल्टी डायमेंशनल गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, ये हम्म बहुत बेसिक बोल रही हूँ. इसके आगे बहुत सारी आगे चीजें चली गई हैं आजकल, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल कमिटीज, नीति आयोग का बहुत कुछ आता है मटेरियल, तो बहुत सारे एडिटोरियल्स रेफर टू दीज थिंग्स. तो आई हम्म यूज्ड टू राइट इट डाउन सेपरेटली. उसको बस मैंने 4 जीएस पेपर्स में बांट दिया था कि कुछ रिलेटेड टू जीएस 1, कुछ रिलेटेड टू जीएस 2, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ लिया तो जीएस 2 में डाल दिया, हम्म नेशनल कमिटी इकोनॉमी रिलेटेड पढ़ ली तो जीएस 3 में डाल दिया, समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी एनीथिंग लाइक दैट अगेन इन द रेलेवेंट जीएस पेपर. सो ऐसा करके आई बिल्ड अ बिट ऑफ अ बेस हम्म एंड a lot of that content we read in for prelims also. Yep. प्रीलिम्स के लिए हम जो पढ़ते हैं वो बहुत सारा कंटेंट हमारा इसमें एज एन एडेड वैल्यू हमारे आंसर्स में यूज हो सकता है. Are you guys on a Mac? या यस. So Mac का I think there is this whole thing that like if you do या something like that and like आई कुछ नो अच्छा, ओके, व्हेन यू मेक सम साइन, ओके. आई डिड दिस नो इट पिक्ड ओके अप. ओके. कुछ तो इसमें मैं एक और ऐड करूंगा कि आपको एक और जैसे एक ही हम्म क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके में इफ हम्म आई कि व्हेन आई रीड अबाउट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा था कि मुझे हम्म कंटेम्प्ररी और प्रैक्टिकली जो है, आई हैव सीन सो मेनी ऐसे ट्रस्ट्स और मठास व्हिच वी से कॉल इन कर्नाटका. हम्म They have brought, matlab, they have established hundreds of schools, हम्म hundreds of hospitals across the state, which has helped in inclusive development actually. कि मतलब सारे वर्ग के सारे जनांग का कि वहाँ पे पढ़ाई होती है, पढ़ाई हम्म मतलब जो त्रिविध दासो which we call. तो हम्म वहाँ पे they give accommodation, food, stay and this one education to all the religion, all the caste students. तो वो भी एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्टी है. दिस हम्म आई हैव कोटेड एज एन एग्जांपल व्हिच आई हैव हम्म सीन. तो ऐसे कुछ कुछ चीजें करना पड़ेगा आपको कि यहाँ वहाँ की which will bring up which will different bring out the aspects. difference and your uniqueness, which is sort of getting you that Yes, extra half or yes, डेफिनेटली 1 month. yes, डेफिनेटली yes, डेफिनेटली. yes. Right. So, like coming to GS4, like obviously both of you have written this great book. So, मतलब, you can all I check it. hope you have went through that. I did go through it. I found some very interesting things. Now, obviously, आपने काफी इसमें lessons from lives वाला चीज में बहुत डिटेल में lives पे लिख दिया है वहां पे. Although even though मतलब I don't know, कभी मैंने देखा नहीं है उस पे सवाल. There are a lot of questions on quotes which come. यस. Right. And that is something that I wanted to discuss with the two of you. कि people are very confused कि भाई मतलब ये करना क्या है इस कोटेशन के साथ. Even though it very clearly says that what does it mean to you in the present context. तो like how do you approach a quote? मतलब there can be 100 different quotes. There can be like बहुत सारी चीजें आती है. They come from महात्मा गांधी to Tagore to Theodore Roosevelt to Lincoln, कहीं भी चले जाते. यस. यस. So is there a framework to approach quotations? How do you like what's the idea that you've shared in the book? So, what I observed with quotations is that quotations are coming from some person, some very well-known great personality. And you mentioned ki, there's no limit. Obviously, there's no limit to how many philosophers and thinkers we can read Yeah. for our UPSC. But there are certain philosophers and there are certain thinkers which have been categorically focused on by UPSC in the past 9 years in ethics paper. We begin with Mahatma Gandhi. Hmm. Mahatma Gandhi as a theme you will find from essay to GS1 to GS2 to GS4. You will find one question. I mean, that is one person, the father of the nation, which UPSC would always stress on. So, Yeah. आप और जब आप उनके कोटेशन, आप अगर कोटेशंस को मैं 2 पार्ट में बांट रही हूँ. एक तो Hmm. ये
जब आप थोड़ा सा उस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा उस पर्सनालिटी के लाइफ के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके स्ट्रगल, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में ब्रीफ एक स्नैपशॉट आपके दिमाग में होता है, तो जब आप उनका कोटेशन पढ़ते हैं, आई फील यू आर मच बेटर प्लेस्ड टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव कि वो कोटेशन या वो थॉट कहाँ से आ रहा है. Similarly, Swami Vivekananda is one theme. But Abra- I would interject over here, my apologies. But the idea is exactly this कि मेन जो थीम्स हमने पकड़ ली वो ठीक है, गांधी जी हमने कर लिया, विवेकानंद जी हमने कर लिया, टैगोर जी कर लिए. नाउ लेट्स से देयर इज समबडी एल्स. हर साल होता है ऐसा कि मतलब यू होता कैन yes, है। द yes, yes, कोटेशंस. yes. सो लाइक व्हाट डू आई डू देन? Because I have no context of how this was said, when this was said, why this was said. Yes. Now what do I do? वही मैं कह रही थी कि फर्स्ट पार्ट तो एड्रेस मैंने कर दिया कि फर्स्ट पार्ट हम Hmm. कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं तो वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि कुछ कहाँ से आ रहा है ये. जब सेकंड पार्ट है, व्हेन द पर्सन इज सम फॉरेन Hmm. ऑथर एंड फॉरेन राइटर, समबडी वी आर एब्सोल्युटली अनअवेयर. और जैसे साउथ इंडिया में तिरुवल्लुवर इज रेड वेरी वाइडली. इन Hmm. नॉर्थ इंडिया वी जस्ट नो We हिज, don't know. we हाँ, we just know just his know his name name. sometime, or even sometimes we don't know his name. Hmm. तो फिर हम कैसे उसको हैंडल करें? तो कोटेशन इज बेसिकली अ सेट ऑफ वर्ड्स. हर सेट ऑफ वर्ड्स में कोई ना कोई की टर्म है, Hmm. कोई ना कोई एथिकल वैल्यू उसके पीछे रिफ्लेक्ट हो रही होगी आपको उस समय. Hmm. अब आपको नहीं पता कि जब वो बोली गई है तो वो एग्जैक्टली किस इंटेंशन से बोली गई है. Hmm. बट हाउ डू यू हैंडल दैट क्वेश्चन इन द पेपर? आई थिंक आई वुड ओनली से रीड द कोटेशन 3 to 4 times. Hmm. द वर्ड्स दैट दे हैव बीन फ्रेम्ड, कौन से एथिकल वैल्यू को वो इंडिकेट कर रहा है, Hmm. कैसे आप उसको किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल या रियल लाइफ सिचुएशन से आप क्या उसको जोड़ पा रहे हो. एनीथिंग विच यू हैव फेस्ड इन योर ओन लाइफ, एनीथिंग विच यू कैन थिंक ऑफ एट दैट मोमेंट. आई थिंक ये 2-3 चीजें हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं जिन्हें हमें सोचना चाहिए. और दैट्स हाउ वी शुड गो एंड अटेम्प्ट दैट कोड. नहीं, इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप ये क्वेश्चन की विच ये सबका यही है एथिक्स में। केस स्टडी एक रहता है, Hmm. फोटो, दिस टू आर दी मतलब दिमाग Problem में areas. को कैसे लिखे आंसर। Yeah. तो पर्टिकुलरली फॉर पीपल हु डोंट रीड लाइक मी, हु डोंट जनरली रीड लिटरेचर, तो हमें बहुत सारे लोगों का नाम पता ही नहीं रहता कि Hmm. उसमें आपको सिर्फ आप कोड को स्टिक ऑन करिएगा। Hmm. कोड में जो कह रहे हैं आपको जो समझ में आ रहा है, जैसे सृष्टि वाज टेलिंग कि कोई ना कोई एथिकल बैकग्राउंड रहेगा उस पे, Hmm. आपको उस एथिकल बैकग्राउंड को पकड़ना पड़ेगा। Hmm. और प्रेजेंट कंटेक्स्ट या जो भी उसके साथ एक दे वुड हैव अटैच सम अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि आप इसमें क्या समझ में आ रहा है या इसको Hmm. आप प्रेजेंट कंटेक्स्ट से कैसे रिलेट करोगे। दिस आर जनरली ऐसे पूछा जाता है Like if आपको। we can take an example from this year ka paper. So now obviously Immanuel Kant is somebody that we all read, but let us assume that we don't know his name, कौन है क्या है कैसे है. The quotation that is given Yes. is in law, a man is guilty when he violates the rights of others. In ethics, he is guilty if he only thinks of doing so. So Hmm. what do you understand by this quotation and how would you approach this? You want to go ahead and then I'll just मैं ये रहा. Yeah, this is I think Yeah, 3C. 3C. Yes. 3C. इसमें पढ़ते ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देयर इज वन थिंग व्हिच दे हैव डिफरेंशिएटेड लॉ एंड एथिक्स। Hmm. Law and ethics need not be same. Hmm. This is one thing which I pick out. And दूसरा कि यहाँ पे they have also focused on when you are wrong. Hmm. So you are legally wrong when you have violated a law. This is the first statement. This is the meaning of second statement. You are ethically wrong while when you think so, when you think that you have violated any law or rights of somebody else, or Hmm. while you have done something wrong. Hmm. These are these दो स्टेटमेंट का मुझे ये समझ में आ रहा है। तो इसके बारे में मेन क्वेश्चन में पढ़े तो गिवन बिलो आर 3 quotations ऑफ ग्रेट थिंकर्स, व्हाट डू ईच ऑफ दिस quotations कन्वे टू इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। Hmm. तो इसको हमें लॉ एंड एथिक्स को जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो करंट अफेयर्स कंटेम्पररी इश्यूज जो रहते हैं उसके साथ रिलेट करते हुए जो भी वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड, तो ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा इन अ कपल ऑफ पेजेस. So this is just a brief which I am telling. What I And understood. If I what don't know I Immanuel Kant, if I am telling. and second is that जैसे फर्स्ट सेंटेंस है कि इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट ऑफ अदर्स. अगर 2 पार्ट्स में है तो 2 पार्ट्स में आप भी अपने आंसर को डिवाइड कर लीजिए, सिंपल.
Let's start by interpreting the first sentence. In law, a man is guilty when he violates the rights of others. Hmm. If you agree with this statement or not, try to support what he's telling. Try to just say कि चलो I agree with what this guy is telling. And then try to elaborate कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि लॉ तभी आप गिल्टी हो आप जब आप किसी के राइट्स को वायोलेट कर रहे हो, आप अगर Hmm. किसी को जा करके थप्पड़ मार रहे हो तो ही आप लॉ में गलत हो. इसका रियल वही है कि एक्चुअली व्हेन यू कमिट अ क्राइम और यू एंड अप वायोलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स, ओनली देन यू आर हेल्ड गिल्टी. बिकॉज गिल्टी होल्ड करने के लिए आपको कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, Hmm. आपको कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से जाना होगा, कोई जज होगा हु विल होल्ड यू गिल्टी. सो दैट इज हाउ द लीगल सिस्टम वर्क्स. सेकेंड सेंटेंस क्या बोल रहा है? बट इन एथिक्स, बट नहीं यूज किया है, हम ही खुद उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं. इन एथिक्स ही इज गिल्टी इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो. Hmm. मतलब अब वो ये बता रहे हैं कि एथिक्स में लेकिन गिल्टी तब भी हो जाएगा जब सोचता भी है कि थप्पड़ मारना है. Hmm. तो अब आप इसको सपोर्ट करना चाहें या इसको रिजेक्ट करना चाहें, मुझे लगता है कि आप इसको सपोर्ट करें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मैं दिस एक इज एग्जांपल समथिंग. इसको एग्जांपल Can भी we reject it? Can we reject? Can we go against the quotation? एंटीथीसिस इसमें I मैंने think yes, you antithesis you you can can do, Hmm. but antithesis at the time, I believe कि antithesis should not be the major portion of your answer. Hmm. Should be one small portion of your answer. अगर 3/4 1/4 आप फॉलो कर रहे हो तो 1/4 your antithesis मैं can दोनों be. को इमीडिएटली मैं एग्जांपल दे दूंगा. आई हम्म सीन दिस क्वेश्चन फॉर फर्स्ट टाइम. मान लो हम्म कि आप मान लो कि आप यू आर अ वेजिटेरियन. Hmm. आप गलती से आपने कुछ नॉनवेज खा लिया. Hmm. आपने सोचा ये गलत है, हम्म तो इसलिए वो नॉनवेज खाना गलत है बिकॉज यू Hmm. आर थिंकिंग दैट इट इज रॉन्ग. सो इन बिकॉज एथिकली इट इज रॉन्ग फॉर यू टू किल Eat अदर non-veg. ईट Yeah. नॉनवेज किल अदर एनिमल्स. हम्म बट इफ नॉन वेजिटेरियन आपको गलत नहीं है, Hmm. तो आप सोच नहीं रहे हो कि ये गलत है. तो दिस इज सेकंड पार्ट का एग्जांपल हो गया That's a आपका. very nice example. हाँ, हम्म तो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल अब रोज देखने वाला Well, the एग्जांपल. essential idea in second part, if I can clarify, is about intent. इंटेंट. राइट yes. कि इंटेंट आपका था कि नहीं था. एंड दैट्स वेयर मतलब टेक्निकल उसमें जाओगे तो वो एक्टस रियस मेंस रिया वाला चीज आ जाती है. हाँ हाँ. करेक्ट करेक्ट गिल्टी करेक्ट. माइंड वर्सेस गिल्टी यस है. यस यस. बट ओवर हियर अब जैसे मतलब बच्चों के बीच में भी होता है कि भाई खाने के बारे में मतलब तुम शरारत सोच रहे थे कुछ. राइट, तो शरारत सोचना भी नहीं है, गलत है. तुम शरारत सोच रहे हो क्योंकि भाई तुम मतलब प्लग में जाके हाथ दे दोगे, कुछ कर दोगे, ये कर दोगे, तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स ऑब्वियसली कम टू माइंड. yes yes. एंटीथेसिस आप यहाँ पे बात करना है तो इन लॉ ए मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स. हम्म. मानो कि आई एम अ बॉस इन अ गवर्नमेंट ऑफिस. आई कैंसिल मतलब आई आस्क माय सबऑर्डिनेट कि तुम्हें इस संडे भी आके वर्क करना है पूरा 24/7. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मतलब उनका राइट तो आप अफेक्ट कर रहे हो. राइट टू लीव और राइट टू पर्सनल लाइफ, राइट टू लिबर्टी. बट यू आर नॉट, मतलब यहाँ पे आप गिल्टी नहीं हो बिकॉज इट इज नॉट इलीगल टू डू सो. देर आर सर्टेन इंस्टेंसेस है वहाँ पे जो इवन इफ यू आर वायलेटिंग समबडीज राइट्स इट इज नॉट इलीगल टू डू सो. So that is where you can quote इसमें fundamental rights में where there are restrictions. This you can quote यहाँ पे. So this is the antithesis which you just मैंने अभी फॉर्म किया, आप भी कर सकते हो, आपके नॉलेज है तो ऐसे करना पड़ेगा एग्जाम्स में आंसर. And I think that is enough. I think that is enough. If That is you enough, can that is manage enough. this, briefly explaining the quotation, briefly giving an antithesis of it, that is all. With exam. उससे ज्यादा एथिक्स के पेपर में इस 3C में नहीं लिख सकते क्योंकि केस स्टडी बहुत लंबी पड़ी है, वहां जाना है. तो एथिक्स पेपर इज पर्टिकुलरली लेंदी. A lot of us feel Definitely. that it is lengthy. तो these 150 words में 1.5 page you have written, you should go ahead. मतलब let's not try to. So on the question of case studies versus जो theory part है, मतलब section A versus section B, तो generally that's a question that's asked कि भाई कौन सा पहले करना चाहिए. तो what would you advise? मतलब what did you do? Advice तो मतलब चलो maybe everybody has to take their own call. I don't know. I to follow the first question first, second question second, third, fourth. I never skip. I had made it a point. छोड़ के कुछ नहीं आना है सृष्टि, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. अगर बाउंसर भी आता है तो लिख के आना है, क्योंकि बाउंसर आप लिखोगे मतलब हर किसी के लिए बाउंसर है. अगर आपने इतना प्रिपेयर किया है मतलब आपके साइड में जो बंदा बैठा है उसको भी ये बाउंसर ही लग रहा है, more or less. And if he ends up leaving that answer, it's good. If you end up writing something, even beating around the bush, you are going to get +1.
तो आई एम समबडी की आई वुड हैव फॉलोड, पहले अगर यूपीएससी पार्ट ए पूछता है तो मैं पहले पार्ट ए आंसर करती हूँ और फिर आई वुड डू मेरा पार्ट भी बी। सेम है, मैं फर्स्ट तो क्वेश्चन से फर्स्ट टू लास्ट। डिवाइड करके, वो भी 10 मार्क का क्वेश्चन एंड है, एंड आई आपके थिंक, पास 7 मिनट है, हाँ, 7 मिनट में आपको लिखना है, यस यस यस, मार्क्स तो चेंज नहीं होगा, तो हाँ। मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर लिख के जाना पड़ेगा। वही तभी है कि कभी भी किसी भी एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम और वो नहीं देना है अटेंशन। यूपीएससी के लिए सब क्वेश्चन सेम है, अगर यहाँ पे 5 मिलेंगे वहां भी 5 मिल सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसमें ज्यादा लिख दूंगा तो मुझे इसमें 6 नंबर मिल जाएंगे और इसमें 4 मिलेंगे, बट यू शुड डू जस्टिस टू एवरी क्वेश्चन, गिव इट द लिमिटेड टाइम दैट इट डिजर्व्स एंड मूव ऑन। I think this is something that I tell all of my students, which is कि भाई in a question it's very easy for you to go from 0 to 2 as compared to going from 5 to 7. मतलब ट्रू। कितनी जान झोंक लोगे, 5 से 7 जाने में तुम्हारा मतलब पानी निकल जाएगा, बट 0 से 2 जाना बहुत आसान है। कुछ भी यस लिख के आ जाओ, जो भी समझ आता है लिख दो। यस। यस Which brings us to sort of the more time consuming part of this paper, जहाँ पे केस स्टडीज की बात होती है। एंड केस स्टडीज में द प्रॉब्लम इज कि लाइक यू वर सेइंग कि भाई 10 मार्कर्स के लिए 7 minutes यू हैव, तो 20 मार्क का केस स्टडीज है, यू शुड हैव 14 minutes, बट अगेन सिंस द केस स्टडीज इटसेल्फ इज अ पेज लॉन्ग एंड देन यू हैव टू एनालाइज द केस, इट टेक्स टाइम। यस। So what is a sort of approach that you would take to analyze case studies to make your life easier? मेरा इसमें ऐसा था कि यार, टू सेव टाइम हियर, Hmm. बिकॉज आप इतना बड़ा केस स्टडीज रहती है, वो भी पर्टिकुलर 2020 पेपर या 2021, Hmm. नॉट, तो इतना लंबे लंबे केस स्टडीज आप पढ़ते पढ़ते आपको मतलब इट वाज टू बी वेरी मतलब you डिफिकल्ट। forget what was written at the beginning by the time you're coming into यस the end. यस। करेक्ट दैट्स करेक्ट। व्हाई व्हाट आई यूज्ड टू डू, पहले मैं Hmm. क्वेश्चंस पढ़ता था, ए बी सी क्या है पूछा है, Hmm. उस क्वेश्चन के अनुसार जब मैं पढ़ रहा था कि मेरे दिमाग ऑटोमेटिकली पकड़ता था कि भाई हाँ, इस Hmm. क्वेश्चन के लिए ये, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडरलाइन दिस दैट, वन। अंडरलाइन दैट, अंडरलाइन दैट। Hmm. तो once you have read, you already know what is the demand of the question, उसका Hmm. आपने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। इफ Hmm. रिक्वायर्ड आपने अंडरलाइन किया वो वर्ड्स, अगेन यू रिविजिट, देन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर। नहीं तो आप दो वो पढ़ के, नीचे का क्वेश्चन पढ़ के, फिर से अगेन जाके, फिर से पढ़ के, फिर से वो मैं नहीं करता था। तो दैट्स Hmm. हाउ आई टू सेम सेव टाइम। आपका कुछ? नो आई थिंक व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन यू नो कि आपका जो आंसर निकलने वाला है वो कैसे निकलने वाला है। आपका आंसर सबसे पहले आपके रोल रोल से आएगा। सबसे पहले यू विल टेल द रोल, व्हाट Hmm. रोल यू आर पुट इन। देन आप स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करने वाले हो, फिर आप एथिकल डायलेमास के बारे में बात करने वाले हो, फिर आप Hmm. ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हो। दीज आर दी ओनली 4 थिंग्स अराउंड विच मोर और लेस यू आर गोइंग टू टॉक इन अ केस स्टडी। So when you are reading the case Hmm. study, you should hit on understand what is your role. Hmm. सेकेंड, यू शुड अंडरलाइन वहीं पे कि भाई कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। यहाँ पे Hmm. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, यहाँ पर पॉलिटिशियन है, यहाँ पर फार्मर है, स्टूडेंट है, या फिर आजकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की केस स्टडीज बहुत आ रही हैं। तो आप सीईओ हो और फिर आप एक एम्प्लॉय हो, समथिंग Hmm. लाइक दैट। दीज आर द स्टेक होल्डर्स दैट आर इन्वॉल्व। एंड देन डेफिनेटली पूरा पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं, आई थिंक इट इज बेटर टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिल जाता है। Hmm. आप इन अ लेंथियर केस स्टडी, शॉर्टर केस स्टडी में ऑब्वियसली यू कैन रिविजिट द थिंग, सो बोथ वेज इज फाइन। I think since the two of you gave the exam in 2018, what has happened is that this has become a standard approach. Everybody is writing stakeholders, everybody is writing, well, ethical considerations, ethical issues. तो मतलब ये आधा पेज जो शुरू का है वो भर गया है, एंड लाइक सबने वो स्टैंडर्डाइज कर दिया है। Now the हाँ problem comes कि since this has become common knowledge, मतलब for you it might have been a new thing because of which you got the extra marks, but now because everybody is doing it, I still need to do हाँ। something more to stand out. एंड नाउ मतलब पर्सनली मेरे को लगता है कि भाई केस स्टडी में आपके पास बहुत ज्यादा ऐसा इनोवेशन का स्कोप नहीं होता, नहीं नहीं बट नहीं द नहीं। स्कोप दैट यू हैव ओवर हियर इज टू टॉक मोर प्रैक्टिकली, हम्म। which is where sort of I think we were having a discussion at the beginning that I would love to have the two of yours opinion on कि भाई मतलब एक जो केस स्टडी है, how would you have written it or how did you write it, approach it as aspirants, and like what is the practical difference that you see with this एज नाउ सर्विंग आईएएस ऑफिसर्स, कि वो प्रैक्टिकलिटी का ब्रिज किधर है, क्योंकि अब उधर का ही स्कोप बचा है। यस, राइट, वो सो विल टेक अप समथिंग, आई थिंक हाँ टेक अप अ हाँ, क्वेश्चन। आई थिंक सो विल टेक अप अ केस स्टडी जो इस साल अगेन आई थी। आई थिंक लेट्स गो फॉर नंबर 11। यस। Yeah, number 11 because it's about district collectors. So since the two of you are अभी तो हम बने नहीं है बन जाएंगे। वी आर इन द प्रोसेस बट हाँ मूविंग टू we यस। क्वेश्चंस भी विजिबल हो जाएंगे, एक सेकंड लेट मी yes दैट। या yes we can see, we can see ओके, with the summary doing exceptions. सो
summer heat and the district is facing severe water shortage. वाटर शॉर्टेज. आई विल जस्ट गो ऑन अंडरलाइनिंग जो Hmm. स्टूडेंट को अंडरलाइन करना पड़ेगा यहाँ पे. योर कलेक्टर, योर रोल, mobilizing subordinate officials, remaining water reserves, prevent acute drinking water crisis. This is very important. Acute drinking water Acute crisis. is very important. Hmm. अवेयरनेस कैंपेन हो गया वहाँ पे, वो भी करना है आपको. ये आप कर रहे हो along with an awareness campaign. Strict measures have been taken नहीं, for अंडरलाइन का बता रहा हूँ. हाँ, Mhm. strict measures have been taken for stopping the over exploitation. Over exploitation is the word which you have to underline. Vigilance teams have been deployed to tour the villages and find the farmers who are drawing water from deep borewells or from the river reserves for irrigation. Irrigation is one word. Vigilance teams find the farmers. The farmers are agitated. वो एक word, agitated is a key word. A delegation of farmers with the district collector with their issues and complaints. दोनों word. That while they are not being allowed to irrigate their crops, big industries located near the river are drawing huge amounts of water. Huge amounts of water. Huge amount through deep borewells for their industrial processes. यहाँ पे issues and complaints. तो वो word important होती है in this statement. The farmers allege that their administration is anti-farmer and corrupt. So allege is the word. Being bribed by the industry. Anti-farmer and corrupt. Anti-farmer, हाँ, allegation है ना वो तो. So it's to placate the farmers as they are threatening to go on prolonged protest. Prolonged protest and placate the farmers. यहाँ पे आपका role define हो गया कि आपको क्या करना है. At the same time, the district collector has to deal with the water crisis. ये भी आपको आपका रोल जो है यहाँ पे आपको आंसर जब करना पड़ेगा. दो रोल आपका डिफाइन हो गया. आप क्या हो, आपको क्या करना है, वो यहाँ पे इन दो सेंटेंस में आ गया समझ में. The industry cannot be closed as this would result in large number of workers being unemployed. ये एक और एंगल उन्होंने जोड़ा है कि ये किया तो क्या किया जाएगा. Unemployed and cannot be closed. So वो भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि it cannot be closed. उसको सोच मतलब आप क्लोज करने का नहीं सोच सकते हैं. हाँ, तो आप सोच वहां पे लिखे तो वहां पे उन्होंने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दी है, वो आपको लिखना नहीं होगा. तो these are the things which you have to underline. So then coming to the questions. Discuss all options available to the district collector as a district magistrate. District collector as a district magistrate. So you have to underline this as a district magistrate. यहाँ पे as a magistrate you are look. ये आपको एज ए एस्पिरेंट जैसे आप पूछ रहे थे, आपको समझ में नहीं आया भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करना रहेगा. Yes. भाई मजिस्ट्रेट ड्यूटी अलग है, कलेक्टर ड्यूटी अलग है. एज ए कलेक्टर आप डेफिनेटली आप वाटर कंजर्वेशन एंड ऑल दिस आप करते ही हो, बट एज ए मजिस्ट्रेट आपको लॉ एंड ऑर्डर संभालना पड़ेगा. तो यदि कोई एक्शंस लेना है तो आपको लीगल एक्शंस लेना पड़ेगा. तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग व्हिच एज यू आज की हमारा अभी का नॉलेज व्हिच विल एड अस इन राइटिंग, so which we might not know when we are preparing. What suitable actions can be taken in view of mutually compatible interests of the stakeholders? What are the potential administrative and ethical dilemmas for the district collector? ठीक है, Srushti, you want to answer first? हाँ ठीक है. तो discuss all the options available. तो what are the options available? तो generally we start with the least viable ethical option कि or most practical option कि first option is that you would say कि I don't agree with what the farmers are telling and we would want to go for conservation of water and we want to handle the acute drinking water crisis and we will continue with the action that is being taken. So first is that I tell that I have to focus on the acute drinking water crisis and I have to handle the situation. So we will have to go ahead with vigilance teams and shutting down people's borewells even if it is affecting the farmers. So that is one option I'm doing. Obviously इस option के बहुत negatives हैं कि आप you are not able to address the issues that the farmers are putting in front of you and farmers are a very important stakeholder in the district. Second यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि law and order आपके district का effect हो सकता है क्योंकि इन्होंने लिखा है prolonged protest में डालेंगे. prolonged protest बहुत जरूरी चीज है. अगर बहुत दिन तक या long time तक कोई धरना देने के लिए आपके जिले में बैठेगा, it will definitely affect all other developmental activities in your district. It will create a lot of issues for you. तो ये हमारे उसके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में बहुत लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना ही आपका मेन उसमें वन ऑफ द मेजर वर्क्स. तो वो दिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो होता है. एंड एज आई टोल्ड यू हैव गिवन टू रोल्स. उसमें फर्स्ट आपका जो गोल है दैट हैज बीन अफेक्टेड बाय दिस, सो दिस इज अ बैड ऑप्शन.
तो सेकंड गोल आपका जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज टू डील विद द वाटर क्राइसिस। हम्म यदि आप मानो कि नहीं, फार्मर्स का हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ठीक है, तो यू कैन यूज दिस वाटर फॉर इरिगेशन एंड ऑल, तो उनके ऊपर जो भी एक्शन ले रहा था उससे हम बैक ले लेंगे, बैक ऑफ कि कर वो लें, बैक लेंगे। तो यू आर अफेक्टिंग दिस सेकंड आपका गोल। which is the developmental role where you have to Yeah. think about the environmental crisis also. एंड फिर आप अगर फार्मर से एग्री कर जाते हैं completely in the second option, आपका लॉन्ग टर्म में फिर यू टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्शन। मे बी आज आप फार्मर्स को करने दे रहे हैं विड्रॉ, मे बी नेक्स्ट ईयर देयर विल बी नो सच वाटर विच कैन बी टेकन आउट ऑफ द ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट ईयर नहीं तो 5 साल बाद डेफिनेटली दिस सिचुएशन विल come up. So this is also not an option which we should थर्ड consider. जो ऑप्शन है, जो आप एज एन एस्पिरेंट मैं वहां पे लिखता, तो इट वुड हैव बीन लाइक कि सबको बुला के म्यूचुअल कंसल्टेशन, वहां पे लिखा है क्योंकि सेकंड वाटर नहीं, थर्ड Second ऑप्शन question. म्यूचुअल कंसल्टेशन, म्यूचुअल कंपैटिबल इंटरेस्ट का Hmm. कंसल्ट, बैठा के बिजनेस वालों को भी बिठा के, फार्मर्स को बिठा के, Hmm. एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट एंड एनजीओ, सबको इंक्लूड करके Would डिस्कशन you में। also include the workers' union? वर्कर्स, हाँ जरूर, उनका भी वो एंगल भी वी यस, हैव टू, यस इंडस्ट्री यस। एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेबर रही है यूनियन तो को जैसे वी Hmm. हैव टू इंक्लूड देम, ऑल दिस कंसर्न्ड आप स्टेक होल्डर्स को आप बिठा के, तो उनके साथ डिस्कस करके यू विल प्लान वाटर मैनेजमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डायर नीड्स एंड ऑट द सेम टाइम अवेलेबल रिसोर्सेज। एंड ये दिस इज अ प्रैक्टिकल, आपको एज एन एस्पिरेंट सोचोगे। आप ये भी बता सकते हैं कि आपका जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसका साइंटिफिक डेटा यू कैन शेयर इट विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। यू कैन एक्चुअली मेक देम अंडरस्टैंड दैट इन द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव फार्मर्स को भी वहीं पे रहना है, उनकी जमीन वहीं यूज करनी है, इंडस्ट्रीज ऑल्सो आर सेटल्ड अप देयर। तो इफ दे वांट टू यूटिलाइज द वाटर रिसोर्सेज एंड वांट टू कंटिन्यू देयर लाइवलीहुड एंड देयर इंडस्ट्रीज, दे विल हैव टू कम अप विद अ सस्टेनेबल वाटर यूसेज प्लान। ये तो हम बिल्कुल सोच सकते हैं। तो सस्टेनेबल वाटर यूसेज प्लान के लिए वाटर एलोकेशन कैसे हो, वाटर यूसेज कैसे रेगुलेट हो, इस पे कहीं ना कहीं वी ऑल नीड टू सिट टुगेदर एंड दिस यू कैन कम डू अ आउट विद लॉन्ग टर्म प्लान गाइडलाइंस। आल्सो, बट एज अ ऑफिसर नाउ, Hmm. आप पूछ रहे थे कि अभी क्या Hmm. लिखोगे, Hmm. so this might have been a not so practical option for us now, Hmm. because ऐसे situations रहता है कि when there is already droughts kind of situation across the state or something, state या कहीं से कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आ ही जाता है पहले कि इसमें क्या करना है। तो दैट इज मतलब पूरा अक्रॉस द स्टेट इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, यू विल गेट अ रूल, मतलब सेट ऑफ गाइडलाइंस कि ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो आ ही जाता है। देयर आर पॉलिसी मेकर, देयर आर सीनियर ऑफिशियल्स हु विल वर्क ऑन दिस, हु आर डूइंग डीलिंग विद दिस। तो आपको एक सेट ऑफ गाइडलाइंस आती है, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। एंड एट द सेम टाइम ड्यूरिंग ड्रॉट या ड्यूरिंग समर सीजन एक जनरल ऑर्डर निकलती है कि भाई आपको ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से, व्हेन देयर इज लेस वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से ही आपको पानी यूज करना है, नो मैटर हु यू आर। तो आपको ड्रिंकिंग वाटर के लिए ग्राउंड वाटर से ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते, जनरल ऑर्डर निकलते हैं विच वी नो ऑफ नाउ। ये एक एंगल। तो आप यदि इफ यू आर एक्चुअली आप एक फार्मर का मतलब बेटे हो या कुछ समथिंग, तो यू विल हैव दैट एंगल कि आप जानते हो कि यार समर में हम पानी इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि ऐसे आदेश निकलती है। वो एक एंगल ऐसा प्रैक्टिकली आप जानते होंगे, दैट यू विल हैव टू ब्रिंग इन हियर। Yeah. So that आप यहाँ पे as an officer which I would have brought in today, वो difference which I can see in this. And suitable action में mutually compatible interest को second question is first का ही follow up question है। उसके साथ साथ आप जो आप करोगे उसका elaborate करते हुए क्यों वो आप ले रहे हो, क्यों उसमें लिया, तो आपको क्या क्या steps लेना पड़ेगा वो भी लिखना पड़ेगा कि if you are taking some practical step, it also has negative impacts, negative उसमें उसका आप कैसे address करोगे। तो जैसे आप ऑप्शन जब लिस्ट करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव लिस्ट तो करोगे ही। व्हेन यू आर टेकिंग द सेकंड क्वेश्चन, उसमें आप व्हेन यू आर टेकिंग सर्टेन ऑप्शन की ठीक है ये सही है मेरे हिसाब से, उसका पॉजिटिव तो आपने ऑलरेडी लिखा है, उसका नेगेटिव आपको एड्रेस करना पड़ेगा कि हाँ इसके लिए मैं क्या करूंगा ऐसे सिचुएशन। And third be what are the potential administrative and ethical dilemma? तो UPSC has given us two words, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एथिकल डायलेमा। तो जैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डायलेमा विल बी कि आपके जो दो स्टेक होल्डर्स हैं, एक आपके पास फार्मर्स हैं और आपके पास टू हैंडल Industries. इंडस्ट्रीज हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर दिस थिंग जो हम बात कर रहे थे कि
लाइवलीहुड और डेवलपमेंट के बीच में, सॉरी वो एथिकल एनवायरमेंटल, में आ एनवायरमेंट, सकता है। हाँ वो एथिक्स में आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव में आई थिंक थर्ड स्टेक होल्डर जो है लॉ वो एंड लेबर। ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर वर्सेस वो आप क्या है, लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और समथिंग लाइक यस दैट। यस। लाइवलीहुड वो एथिकल टर्म हो जाते हैं, तो कि वी नहीं, कैन बट यूज लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज लाइवलीहुड फॉर फार्मर्स, बट अगेन। इनकम। Yes, हाँ, yes, that is also there. Correct. so that you can add like that. Hmm. And ethical dilemma why development versus livelihood आएगा कि, एथिकल and डायलेमा में एनवायरमेंटल एथिक्स का environment, एंगल आएगा environmental कि conservation। क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात हो रही है, ओवर हम्म। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की बात हो रही है, तो यू कैन टॉक अ बिट अबाउट एनवायरमेंटल एथिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट। और आई थिंक दैट कैन बी जक्सटापोज्ड विद एंड ऑल्सो वो उसमें डेवलपमेंट। लेबर वर्सेस वो मतलब लेबर राइट्स वर्सेस फार्मर राइट्स, वो भी आप वो एक एंगल एडमिनिस्ट्रेटिव में लेके आ दैट्स अ सकते नाइस एंगल, लेबर वर्सेस फार्मर राइट्स। हो। फार्मर राइट्स, हम्म लेबर राइट्स वर्सेस फार्मर राइट्स, वो भी कर सकते हो। तो हम्म ऐसे यू कैन, यहाँ पे आपको यू हैव इन दिस क्वेश्चन यू हैव स्कोप टू हम्म थिंक एंड ब्रिंग इन न्यू डायमेंशंस। हम्म आपको इस क्वेश्चन में अलग अलग लिखेंगे। हम्म आई कैन 100% की सृष्टि जो लिखेगी मेरा वही सेम नहीं रहेगा। तो हम्म ऐसे क्वेश्चंस में यू हैव अ स्कोप टू ब्रिंग इन अ या बिट ऑफ इनोवेशन और हम्म सम डिफरेंट अप्रोच, एक हम्म प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आ सकते डेफिनेटली। एंड क्योंकि अब जो फर्स्ट वाला पार्ट है दैट इज सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कि भाई एवरीबडी इज गोना राइट कि भाई स्टेक होल्डर्स कौन कौन है यहाँ पे, कि भाई हैं। मेजर इश्यूज क्या क्या हैं। बट राइट। नाउ दैट सेपरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन सीधा पूछ ही लिया आपसे कि भाई एथिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायलेमास क्या है, तो हम्म उसके अलावा अब जो ऑप्शंस हैं या कितनी प्रैक्टिकल तरीके से आप उस ऑप्शन में से मतलब फ्यूचर का पाथ निकाल के लाते हो कि भाई व्हाट यूजेज प्लान बनाना है। एंड एज यू सेड कि भाई इफ समबडी कम्स फ्रॉम अ फार्मिंग बैकग्राउंड, तो भाई उनको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में फायदा रहता है। बट देन अगेन हर बैकग्राउंड के लिए सिमिलर क्वेश्चंस मिल गए हैं, कोई कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आ रहा है तो उनके लिए भी कुछ केस के स्टडीज लिए हैं, अलग। एब्सोल्युटली। which is I think something UPSC has been doing quite a bit कि भाई प्रैक्टिकल एथिक्स की तरफ जा रहे हैं। नाउ दैट वी आर मूविंग इनटू मोर अप्लाइड एथिक्स का टेरिटरी, तो व्हाट इज योर एडवाइस टू पीपल, हाउ शुड दे प्रिपेयर फॉर एथिक्स? कि भाई एक तो होता है मैं एथिकल थ्योरीज वगैरह पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, बट अभी मेरे से सवाल पूछा जा रहा है वो सब अप्लाइड एथिक्स में है कि भाई हम्म इस सब से एडमिनिस्ट्रेशन को क्या फायदा हो रहा है, हाउ डू यू बिकम हम्म अ बेटर सिविल सर्वेंट आउट ऑफ दिस, तो हाउ डू यू डील विद दीज क्वेश्चंस? आई थिंक आई वुड से कि आपको ये एथिकल डायलेमास और एथिकल पर्सपेक्टिव्स का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा थ्योरेटिकल उससे आता है, तो एक हम्म बेस तो आपको बनाना चाहिए। मतलब इट इज इम्पोर्टेंट दैट एक आप बेस समझ ले कि क्या क्या डिफरेंट एथिक्स होते हैं, अलग अलग रोल्स हैं। लॉयर हम्म है कोई, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, तो उनके एथिकल वैल्यूज उस प्रोफेशनल एथिक्स के क्या हैं। अगर आप हम्म किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं तो आपके क्या क्या एथिक्स हो सकते हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए जो थियोरेटिकल है। एक हम्म बार आपने वो अंडरस्टैंडिंग ले ली, फिर आई थिंक आपको यू शुड ट्राई एंड कनेक्ट इट विद द डे टू डे हैपनिंग्स। एंड आजकल विद द ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी सिंगल डे you can observe some or the other thing which is an ethical dilemma. मतलब I हम्म will be having some other perspective, he will be having some other perspective, and we both might be ethically correct from different perspectives. So I think during preparation आप जो current affairs पढ़ रहे हैं, हम्म whether it is some crime, whether it is some incident, some person behaved in some manner to some way, आपको इन सब एग्जाम्पल्स को क्लोजली आप जो एथिकल थियोरीज पढ़ते हैं उनसे रिलेट हम्म करने की कोशिश करेंगे, तो यू विल फाइंड सम रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ दोस थिंग्स। एंड आई थिंक दैट इज वेयर व्हेन यू फाइंड अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन द एग्जाम यू विल बी एबल टू बेटर हैंडल दैट। एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन? एंड इसमें जैसे आई अंडरस्टैंड कि आप पूछ रहे थे कि क्यों इस पेपर का क्या मतलब होता है, मतलब वही वही हाउ इट विल हेल्प इन हम्म हम्म मे बी वर्क डे टू डे। तो आप एक अब तक while you are preparing, before preparing कि आप you generally don't have the understanding of the ethical viewpoint of any policy making or any actions what you take। उससे पहले तो हम्म आप generally you are doing what you are doing, what you feel is right, आपका खुद का principles होता है, एक व्यू पॉइंट होती है, उसके हिसाब से आप काम करते हो। बट when you are reading ethics as a subject, when you're preparing for UPSC, when you internalize the concepts which you go across, तो दैट ब्रिंग्स इन मल्टी टाइम, मतलब एक अलग डायमेंशन लेके आता है, मतलब एक डिफरेंट सोच लेके आते हैं हम्म एंड एक पर्सपेक्टिव लेके आते हैं सब सब स्टेक होल्डर्स के बारे में, तो इन एनी गिवन सिचुएशन। एंड ऑल्सो वी आर वेरी जूनियर ऑफिसर्स, बट वी कुड ऑल्सो से दैट कि मतलब हमारे जो भी डे टू डे काम में इट विल डेफिनेटली हेल्प अस कि हम्म आई वुड से इट विल डेफिनेटली मेक हैज मेड अस मतलब थोड़ा बेटर डिसीजन मेकर्स
when it comes to because it will affect so many of the कि सबका अलग अलग सोच हमें करना पड़ेगा कि भाई इनका क्या है इससे ये हम्म क्या होता है इनको कैसे अफेक्ट होती है इनको कैसे अफेक्ट होती है which अगर आप चाहे या ना चाहे वो आ जाते हैं ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ हम्म प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर हाँ, so maybe I think we would have gone through this. So थोड़ा कहीं ना कहीं वो आपका एक लेंस शेप करता है in real life also. That is true. so So I think that will be that. Thank you both for a great time and काफी डिटेल में आप लोगों ने समझाया है ये. thank you So so much मतलब thanks for being a wonderful host as well Yes, we this was the first time talking so lightly about the preparation yes and yes with a lot generally of हम other things फिक्स रहते हैं कि also. भाई ये मत It's करो more of so a it was a very light conversation. interaction Nice. thank you for that Thank right. you. And one thing that I would like to ask you on a more light-hearted note, as like अब जैसे you both met in the academy, right? You got married once you got out of the academy, you got your postings, everything. So like, how has marriage impacted you in service, or how has service impacted you in marriage? I don't know which way comes first. आपका पर्सपेक्टिव You can start. It's okay. नहीं इसमें I would say कि यार in recent days so no matter it's in मतलब civil service or wherever it is everybody both the partners they are working Yeah. so they have their own career एक goals and passion रहती है so and यहाँ पे भी same है तो only thing is in the beginning years थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा दूर रहते हैं कि थोड़ा आपको समय which is common in all marriages nowadays they both are working तो उस हिसाब से not much of a difference कि ऐसे कुछ उतना ज्यादा कुछ it doesn't make I think But I would say, difference as in service, I think, for example, in the initial years, you are doing for field postings, and so you have your individual districts to work in. So chances are less that we might be posted in a single place. It definitely affects the amount of time Time that में we spend with each other practically. So somewhere it also challenges us. But then, it comes back to the love that we have for work and the love that we have for each other, which ultimately brings, everything together. And so we know that we are doing it for a reason and are happy that we are able to discuss. So these ethical dilemmas, we discuss it every single day, and not just ethical dilemmas, we have so many interactions with so many different people. We are able to interchange that knowledge with each other. And I think that enriches both our careers and our relationship as well. yes Thank you guys again for your time and wish you a lovely evening. thank Thank you you so much. All the best to Thank- everyone. Thank you.